So in unification of German, we have discussed efforts were made by the middle class. I'm revising the German and Italy unification. Later on, we will start the BTEC. So middle class put the efforts for the German unification. German to write the different regions of the German and nation state or ruled by the inside the Prussia. So these efforts were suspended by these efforts were the suppressed by the monarchy, military and landowners in Prussia. उन्होंने इनको डोमिनेट किया. The national unification was taken under by the leadership of Prussia monarchy. और मैंने ये भी बताया था आपको कि क्यों कंजर्वेटिव ने ये स्टार्ट किया कि दे वांट टू टेक क्रेडिट ऑफ डेट. तो Otto von Bismarck was the Prussia played the important role for a main leader and acted nation building. In 1871, Kaiser William फर्स्ट वाज द डिक्लेयर एज द न्यू एम्पायर ऑफ द न्यू एम्पायर. मतलब जर्मन के न्यू एम्पायर किसको बनाया गया? केसर विलियम. अगर 1 मार्च में क्वेश्चन आता है इन 1871. इन पर्सन प्ले द इम्पोर्टेंट रोल. those person who play the important role are the Otto von Bismarck. Okay, so the unification of Germany established Prussian dominance in Europe. Or what they have done after the unification, modernization in currency, banking, legal and judicial system were introduced by the new German Empire. So ये changes हुए थे. So these are the points related to the German unification. अब now turns come to the unification of Italy. In unification of Italy, mid 19th century process was started. Or earlier we have discussed Italy was ruled by the different rulers. In northern side it was ruled by the Austria, central by the Pope, or southern by the Bourbon family of Spain. And only island area जो located था, it was the ruled by the princely states. So what divided into 7 states, Italy. Only Sardinia, Piedmont was ruled by the Italian princely houses. North was the ruled by the Austria Habsburg. The center was ruled by the Pope, and south was the under Bourbon kings of Spain. So around 1830, for Italian Republic, Giuseppe Mazzini program was the form, played the important role. Not finally was succeed. जैसे हमारा 1857 मूवमेंट सक्सीड हुआ था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था. जैसे रानी लक्ष्मीबाई, त्यात्या टोपे, मंगल पांडे. हम मानते कि सच मोमेंट वन नॉट अ गुड सक्सेसफुल, बट एक चिंगारी तो स्टार्ट हुई थी ना उसके साथ. तो ऐसे जैसे मेजरली प्ले द इम्पोर्टेंट रोल फॉर ए स्पार्किंग चिंगारी के लिए. तो यंग इटली a secret society was also formed during this time. Failure of revolutionary uprising from the 1831 to 1848 by King Victor. Sorry dear for disconnectivity of network. Are you hearing my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, but okay. So in unification of Italy, so Victor Emmanuel II played the important role. And Count Kever, chief minister, also play important role. So he planned the Sardinia predominant led the movement unification of Italy. जो केवल जो he was not a politician or the revolutionist, but he played the important role as a chief minister for unification of the northern Italy. And Sardinia predominant force marched into the South Italy and kingdom of the two society throughout the Spanish rulers. At 1859,
Austrian forces were defeated by the France Sardinia predominant alliance because he has the good relation with the France chief minister. Or 1861, Victor Emmanuel became the king of United Italy and Rome was declared capital of Italy. So this was the unification of Italy. Up today we will discuss about the unification of Britain. Here, are you able to see the slides? Yes, sir. Okay ना? Yes. चलो first see the slide. In this map is given जो ब्रिटेन मैप है, तो आज तक हम व्हाट इज द यूके, व्हाट इज द ग्रेट ब्रिटेन और व्हाट इज द ब्रिटिश आइलेस, तो ये हम कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आज पहले इसको क्लियर कर लेते हैं थ्रू द डिस्कशन। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, स्ट्रेंज केस क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो सडन मूवमेंट स्टार्टेड, कोई एकदम कोई रेवोल्यूशन जैसा कि इटली और जर्मन में हुआ ऐसा कुछ भी यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ बेटा, इनसाइड द यूके और ब्रिटेन कुछ भी ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ। इट हैपन्स थ्रू द लॉन्ग प्रोसेस। जब भी आप आंसर लिखोगे तो मैं स्लाइड में बताऊंगा एक पॉइंट जो हमेशा आपको यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में लिखना है। तो फर्स्ट डिस्कस is totally divided into 5 parts. Scotland, are you able to see Scotland? Yes. Message. Are you able to see beta Scotland? Yes, sir. Okay. Yes, sir. England. Yes. England, Wales. Okay. Yes, sir. तो group of the 3 country, Scotland, England और Wales, it is known as the Great Britain. ये मेरा कर्सर टर्न कर रहा है। इट इज नोन एज द ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रुप ऑफ 3 कंट्री, मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए बता दूं, ग्रेट ब्रिटेन इक्वल टू स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स, सिंपल सा है। यानी ग्रेट ब्रिटेन जो हम कहते हैं ना जिसको ग्रेट ब्रिटेन, इट इज द ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज ओनली, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है। इन 3 कंट्रियों को मिला के जो बनता है ना, इट इज द ग्रेट ब्रिटेन। ओके, अब इसमें एक आइलैंड कंट्रीज आता है, इट इज नोन एज द नॉर्थ आइलैंड, आइलैंड जहाँ की क्रिकेट टीम है, और रिपब्लिक आइलैंड, रिपब्लिक आइलैंड ये कंट्रीज है। तो अगर ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम कहते हैं, ओके, वी एड द नॉर्दर्न आइलैंड, अगर नॉर्दर्न आइलैंड पार्ट को हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये रेड कलर का जो दिख रहा है, इट इज नोन एज द यूके। यानी क्या हो गया, ये यूके कहलाएगा पूरा। यानी ग्रुप ऑफ द 4 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ द 4 कंट्री, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आइलैंड, इट इज नोन एज द यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो सिंपल सा मैथ्स में आप फॉर्मूला बना सकते हो कि ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आइलैंड इक्वल टू यूके, बन गया आपके लिए लर्न करने के लिए। यानी अगर इसमें नॉर्दर्न आइलैंड को भी हम ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ये ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज को मिला के यूके बनता है, और ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज को मिला के बनता है जो ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं हम, ग्रेट ब्रिटेन। और केवल ब्रिटेन की बात करें, सॉरी ओनली अगर इंग्लैंड की बात करें तो दिस एरिया ओनली इंग्लैंड। ओके, और ये पार्ट है रिपब्लिक आइलैंड। ओके, जहाँ की आपने क्रिकेट टीम भी सुनी होगी आयरलैंड की। तो दिस इज नोन एज द रिपब्लिक आइलैंड। तो अगर रिपब्लिक आइलैंड इन 5 कंट्री को अगर मिला लें तो इट इज नोन एज द ब्रिटिश आइलैंड्स। तो डेट इज नोन एज द ब्रिटिश। अब मैं रिपीट कर देता हूँ, मैप, स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन। ओके, एंड इफ यू एड ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आइलैंड इक्वल टू यूके, अगर इसमें नॉर्दर्न आइलैंड को भी मिला दे, यानी ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज इज नोन एज द यूके। और इफ यू एड द रिपब्लिक आइलैंड, जो रिपब्लिक है जहाँ की क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम जो जहाँ की खेलती है ना बेटा अपने इंडिया में, इनमें
वर्ल्ड कप में, डेट इज द रिपब्लिक आइलैंड यहाँ की। तो डेट इज नोन एज द ब्रिटिश आइलैंड्स, इस पूरे ग्रुप को। तो आपका मैं असाइनमेंट भी दे दूं आज, सिंपल सा है कि आपको मुझे इतना सा आंसर बताना है कि रिपब्लिक आइलैंड जो क्रिकेट टीम है, कि नॉर्दर्न आइलैंड और रेस्ट ऑफ यूके प्लेयर्स दे मे बी प्ले इनसाइड द रिपब्लिक आइलैंड क्रिकेट टीम और नॉट। आर यू लिसनिंग ना? Yes, sir. आपको केवल इतना सा बताना है कि रिपब्लिक आइलैंड की जो टीम है क्रिकेट टीम, क्या उसमें नॉर्दर्न आइलैंड और रेस्ट ऑफ कंट्रीज के प्लेयर्स खेल सकते हैं क्या या नहीं? ट्राई टू फाइंड आउट, कल बताना मुझे। ओके, दिस इज योर असाइनमेंट। तो दिस इज योर मैप और सीधा यूनिफिकेशन, बहुत सिंपल यूनिफिकेशन है इसका। तो जब भी ये यूनिफिकेशन क्वेश्चन आता है तो आपको एक सेंटेंस इसमें ऐड करना ही करना है कि इट वाज फ्रेम आउट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस नॉट बाय द सडन अपीवल मोमेंट और रेवलेशन। यानी जो ये मोमेंट हुआ ये एक बहुत लंबी और लॉन्ग प्रोसेस के साथ हुआ, न कि कोई सडन मोमेंट जैसा कि इटली और जर्मन के अंदर हुआ। देयर वाज नो सच मोमेंट, कोई यहाँ पे फाइटिंग, कोई मूवमेंट, कोई मिलिट्री, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पे क्या होता था, वेरियस एथनिक आइडेंटिटीज ग्रुप थे। इंग्लिश वाले इंग्लिशियन, वेलिशियन जो लैंग्वेज बोलते थे, स्कॉटलैंड वाले, आयरिश जो आइलैंड वाले, तो इनका डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज होती थी। ठीक है, देवर पार्ट ऑफ द यूके और यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन, बट देयर कल्चर्स वर डिफरेंट। जैसे हम इंडिया या इंडिया सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं, अब इंडिया सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज आ जाते हैं, बट वी हैव द डिफरेंट कल्चर। एक तरफ आपको इस्लामिक कंट्री मिलेगी, एक तरफ हिंदुज़म, और एक तरफ आपको बुद्धिज्म मिल सकते हैं। तो ऐसे कितने कल्चर, डिफरेंट कल्चर है। ऐसे यू नो इन दिस ग्रुप देयर वर द डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट आइडेंटिटीज। तो सब लोगों की अपनी अपनी आइडेंटिटीज थी, अपनी अपनी डिफरेंट लैंग्वेज थी। ऐसा नहीं था सबकी लैंग्वेज कॉमन हो। तो यू नो स्कॉटलैंड की लैंग्वेज डिफरेंट थी, आयरलैंड की लैंग्वेज आयरिश लैंग्वेज थी। तो इसके अंदर क्या था बेटा, सबसे डेवलप्ड कंट्री था ओनली ब्रिटेन, यानी जो दूसरों को डोमिनेट कर सके, मतलब इंग्लैंड। तो इंग्लिश पार्लियामेंट सबसे पावरफुल था, क्योंकि रेस्ट ऑफ कंट्री इतनी डेवलप नहीं थी जितना कि इंग्लैंड था। और यू नो इंग्लैंड आल्सो रूल्ड ऑन द, देयर वर द मेनी कॉलोनियल कंट्रीज। कितनी कॉलोनियल कंट्री रही इंग्लैंड की? तो इंग्लैंड पार्लियामेंट वाज टू मच पावरफुल कंपेयर देन द रेस्ट ऑफ कंट्रीज। तो सीज द पावर फ्रॉम मोनार्की 1688 कहाँ पे किए? केवल इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में जो यू नो मोनार्की रूल था, तो उसके पावर को सीज कर दिया, कंट्रोल कर लिया। और 1688 में, यानी आप रूलर भी रहेंगे बट पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट भी रहेगी, यानी कंट्रोल द पावर्स। तो दिस हैपेंस इन इंग्लैंड 1688। ओके, अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्ट। तो कैथोलिक और प्रोटेस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ कुछ कंट्री, जो ये 5 ग्रुप है कंट्रीज का, डिफरेंट ग्रुप है, तो कुछ कंट्री कैथोलिक है और कुछ प्रोटेस्ट। अब कैथोलिक कौन से होते हैं? यू नो कैथोलिक, कैथोलिक वो होते हैं जो यू नो इन क्रिश्चियन, दोज हु आर द कंजर्वेटिव, और जो ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। हम केवल कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं यहाँ। जो ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और जो दोज हु आर द मींस द कंजर्वेटिव, जो एक रिलीजियस सोच रखते हैं, मोनार्क वाले। और प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्ट जो दोज पीपल हु आर द मॉडर्न, मतलब जो इनके बाद जो इनका अपोज करते हो ऐसी सोच का, और जो दिस आर द पीपल। तो देयर वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। जैसे यू नो हर रिलीजन के अंदर होता है बेटा एक कॉन्फ्लिक्ट। जैसे यू नो इन जैनिज्म ले लोगे तो श्वेतांबर दिगंबर, इन मुस्लिम ले लोगे तो ये शिया एंड सुन्नीज, बुद्धिज्म ले लोगे हीन यान महायान, हिंदुज्म ले लोगे अपर कास्ट लोअर कास्ट। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो हर रिलीजन में होता है। जहाँ इतने लोग होंगे कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, दो थॉट्स, व्यूज, आइडियोलॉजी बनेगी बनेगी। तो देयर वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो यू नो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 पास बाय द इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड मैंने बता दिया क्यों पावरफुल था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा था बेटा इंग्लैंड में।
अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकम ज़्यादा थी, दूसरे कंट्रीज को लोन और डेवलपमेंट के लिए पैसे प्रोवाइड करते थे ये लोग। तो इसने इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन बना लिया। यानी 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन पास करके इसके स्कॉटलैंड को किसके साथ मिला लिया, विद इंग्लैंड, और इक्वल टू बन गया यूनाइटेड किंगडम। अब इन केस ऑफ आयरलैंड, तो ब्रिटेन सपोर्ट द प्रोटेस्टेंट, क्योंकि ब्रिटेन क्यों सपोर्ट करता था आयरलैंड को, क्योंकि सेम कल्चर के लोग रहते थे, क्योंकि आयरलैंड भी कौन सा कंट्री है, दोज आर द प्रोटेस्ट, और ब्रिटेन आल्सो प्रोटेस्ट। तो बोथ कंट्रीज हैव द सेम सिंपैथी और सेम आइडियोलॉजी। तो ब्रिटेन सपोर्ट टू द प्रोटेस्ट एंड फेल्ड रिवोल्ट बाय द ऑल्टन एंड इज यूनाइटेड आइरिशमैन। 1798 में एक मूवमेंट स्टार्ट किया, और जो ऑल्टन था और उसके आयरिशमैन जो था उसको भी अपने अंडर ले लिया इन 1798, और आयरलैंड को मिला के आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन 1801 में, यानी ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड, दैट इज नोन एज द व्हाट, सी, ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड, दैट इज नोन एज द यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो एक पूरा यूनाइटेड किंगडम बन गया। अब इन्होंने ये तो बना लिया यूनाइटेड किंगडम। अब क्वेश्चन आता था कि वे ऑफ द डिफरेंट कल्चर, सब चीजें अलग अलग है, तो हम कैसे एक कलेक्टिवाइजेशन लेके आएंगे, यानी कलेक्टिवाइजेशन कैसे लेके आएंगे। तो कलेक्टिवाइजेशन आइडियोलॉजी और फ्लिंग्स लाने के लिए इन्होंने ब्रिटिश फ्लैग बना दिया, जिसमें यूनियन जैक इस टाइप का फ्लैग होता है ना, जो सबको यूनाइटेड किंगडम को रिप्रेजेंट करता है, लाइक दिस यूनियन जैक बना दिए फ्लैग्स में। नेशनल एंथम्स बनाए, ओके, एंड गॉड सेव आर नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज बना दी वहां पे। तो दिस इज द वे थ्रू द ब्रिटेन यूनिफाइड हिमसेल्फ। तो इस तरह से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। दोनों मैंने नोट्स, ये स्लाइड्स और जो ये वाले, वी हैव सेंड ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है बेटा। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ